اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری منت ہے آپ سے، عمرے اور حج کے لیے جائیں اور آپ کو یہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو سمجھ لیں پھر آپ یہاں سے کوئی سرمایہ لے کر نہیں گئے اور سرمایہ لے کر نہیں آئے. ساری دعائیں محبوب ہیں. دو چیزیں عمرے اور حج کے لیے، ایک لقد جاءکم رسول والی آیت سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، اور یہ ایک دعا، وہ قرآن اور یہ حدیث. بس ہمارے پاس قرآن و حدیث ہی تو ہے. ڈوب کے بس ایسے گڑ گڑا کے سر جھکا کے، تسبیح اٹھانا ضروری نہیں، لے لیں اچھی بات ہے. دعا کے ہاتھ اٹھانا ضرور نہیں، ہو جائیں کوئی حرج نہیں، پر دل کو متوجہ کرنا ضروری ہے. اللہم انی اسألک، مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے غیر سے سوال نہیں کرتا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت. بس آپ شفقت فرمائیں، اس دعا کو یقین سے پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہوئے. اور اگر حج عمرے پہ نہیں جا سکے اور جو ہو آئے اور موقع نہیں ملا، پھر یہاں سے بھی ایک، میرے پاس یہاں کا بھی ایک پیکیج ہے، ایک دیسی پیکیج ہے. وہ یہ ہے جاگرے چل ماشاء اللہ. تو وہ یہ ہے، تھوڑا جھوٹا آیا ہاں، وہ یہ ہے کہ حضور کی جالیوں کا تصور کر کے، مواجہ شریف روضہ اطہر کا تصور کر کے کہ میں حضور کے روضے کے سامنے بیٹھا. اگر گئے نہیں تو جالیوں کا تصویریں تو دیکھی ہیں. حضور کے روضے کا تصور کر کے اس دعا کو پڑھیں اور اپنے مقاصد کا ان تقضی حاجتی، جب حاجتی پہ پہنچے تو اپنی حاجت، اپنی مقصد، اپنا مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنے مسائل، زندگی کی مشکلات، ان کا تصور کریں. پر ایسی ڈوب جائیں، ایسے گڑ گڑائیں اور بھکاری بن کے اور محتاج بن کے اس سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے حبیب سے باتیں کریں. نہیں ہے شرک، نہیں ہے یہ بدعت. میں آپ کو شرک اور بدعت پہ نہیں لگا رہا. انشاءاللہ اللہ مجھے سچی راہوں پہ سچا ہمیشہ رکھے. بدلتے پتہ نہیں چلتا. میں آپ کو بدعت اور شرک پہ نہیں لگا رہا، اللہ والوں نہیں لگا رہا. یہ جو کچھ بتا رہا ہوں یہ سچے اکابر کی زندگی بتا رہا ہوں. اللہ پاک آپ کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت ہے. پیسوں کے بغیر ایک آپ کو آسان عمل بتاتا ہوں. جب بھی اذان ہونا، میں نے جس کو بھی بتایا ہے دیدار مصطفیٰ اور حج اور عمرہ اس کو کثرت سے نصیب ہوا. اچھا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پاک آپ کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت ہے پیسوں کے بغیر. کس کے بغیر؟ پیسوں کے بغیر. اللہ حج عمرے کے ساتھ. بڑی پرانی بات ہے، میں بادشاہی مسجد گیا، بہت پرانی بات ہے. میں نے وہاں عصر کی نماز پڑھی تو ایک خادم تھا، وہ صفائی کر رہا تھا. لاہور بادشاہی مسجد شاہی قلعے کے ساتھ تھا. تو مجھے ایسے کہنے لگا دعا کر دو اللہ مجھے حج کرا دے. دعا کر دو اللہ مجھے حج کرا دے. میں نے کہا حج کرنا چاہتی ہوں، عمرہ بار بار کرنا چاہتی ہوں. کہنے لگی ایک دفعہ ہو جائے بڑی بات ہے. میں نے کہا بار بار ہو جائے گا. میرے پاس حج عمرے کے دو عمل ہیں. ایک عمل ہے، میں ایک آپ کو آسان عمل بتاتا ہوں، بالکل آسان عمل. جب بھی اذان ہونا، اذان کی دعا پڑھ لیں. اذان کے بعد
3 दफा तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये याद कर लो, 3 दफा दिल ही दिल में पढ़ लें। मैंने जिसको भी बताया है दीदार मुस्तफ़ा, ज़ियारत रसूल, रोज़ा रसूल और काबा का तवाफ, इहराम, सफ़ा मरवा और मुज़दलिफ़ा और हज और उम्रा उसको कसरत से नसीब हुआ। गरीब के दिल में चाहत होती है मैं हुजूर का रोज़ा देखूं, अल्लाह का घर देखूं और मक्का मदीना देखूं, और आपके पास पैसे नहीं है, असबाब नहीं है, क्यों परेशान होते हैं? आप चुप करके मेरे इस टोटके पे अमल करें। तलबिया अजान के बाद 3 दफा पढ़ना। हदीस में आता है जिन वक्तों में दुआएं कबूल होती हैं उन लम्हों में एक लम्हा अजान के बाद का लम्हा है, फर्ज नमाज के बाद का लम्हा है, और जब नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त हो रही हों और उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। हमेशा उस वक्त दिल ही दिल में दुआ क्या करें जब सफ़े दुरुस्त हो रही हो, थोड़ा सा लम्हा होता है, और जब मुअज्जिन इकामत कह रहा है और जब कहते हैं ना कद कामतिस सलाह, कद कामत, उस वक्त दिल में जो मुराद मांगे कबूल होती है। हाँ, हदीस में आता है ये कबूलियत की घड़ी है, ये कबूलियत का लम्हा है। जो दुआ मांगे कबूल होती है, जो दुआ मांगे कबूल, ये कबूलियत की घड़ी है, ये कबूलियत का लम्हा है, ये दुआ मांगे कबूल होती है। फरमाया जब नमाज की सफ़े दुरुस्त हो रही हो, जो दुआएं मांगे कबूल होती हैं। और एक हदीस में यहाँ है, शेख ने लिखा है हिस्न हसीन और किताबों में, फरमाया कि जब मुर्ग बांग दे सुबह दोपहर शाम, वो रहमत का दरवाजा खुलता देखता है। हदीस में आता है जो दुआ मांग कबूल होगी। जब मुर्ग बांग देता है, आवाज निकालता है, तो रहमत का दरवाजा खुलता है। हदीस है, आप बादब लोग बैठे हैं, मानने वाले बैठे हैं, जज्बों वाले बैठे हैं, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। हकीकतन मैं आपको अर्ज करता हूं, ये तलबिया जो है ना, तलबिया अगर आप बार बार हज उम्रा करना चाहते हैं तो तलबिया जो है ये पढ़ें। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ खुशियां बचाना चाहते हैं, और मैंने आपसे एक सवाल किया कि आपको कैसे यकीन है कि आपकी औलाद भी मालदार होगी, आपको कैसे यकीन है कि आपका रिस्क भी कुशादा होगा, आपको कैसे यकीन है कि आप हमेशा खुश होंगे। अगर ये करना चाहते हैं, एक तस्बीह सुबह शाम इस्तिग़फ़ार की अपनी ज़िंदगी में, और एक तस्बीह पे 5 मिनट लगते हैं, 7 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, चंद मिनट लगते हैं। क्या इतनी बड़ी दौलत और विरसे को बचाने के लिए आपके पास 5 मिनट भी नहीं है? बोले नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहते नहीं है, तो नहीं है तो निकाले, 5 मिनट निकाल लें। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह एक ऐसी करें, पहले मुझसे तरीका सुन ले, तरीका मुझसे सुन ले। इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह ऐसी करें जिस पे दिल भी साथ दे, ज़ुबान भी साथ दे, जिस्म भी साथ दे, रुआ रुआ साथ दे, अंग अंग साथ दे, ज़र्रा ज़र्रा साथ दे, और जिस्म ऐसा हो कि मौला मुझसे बड़ा दुनिया में कोई मुजरिम नहीं, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई जालिम नहीं, मुझसे बड़ा दुनिया में फासिक और फाजिर नहीं, मुझसे बड़ा दुनिया में मौला कोई खसारे वाला नहीं, मुझसे बड़ा दुनिया में मौला कोई ऐसा नहीं कि जिसने धरती का अंग अंग स्याह कर दिया हो, मौला मुझसे बड़ा कोई नहीं। एक तस्बीह ऐसी करके देंगे तो सही, एक तस्बीह ऐसी। अगर नस्लों के लिए कुछ बचा के जाना है, एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, नस्लों को फकीर छोड़ के ना जाना, मंगता छोड़ के ना जाना, ना जाना, नस्लों को फकीर छोड़ के मंगता छोड़ के ना जाना, ना जाना, ना जाना, ना जाना। और ये हमारे बस में नहीं है, बस में है कि हम फकीर मंगता। देखें, एक बात मैं जो अक्सर अर्ज किया करता हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, अपनी नस्लों को आप दौलत, मीरास, विरसा, जहेज,
ट्रक, गाड़ियां, भैंसें, नौकर, बंगले, ये चीजें दे सकते हैं, पर अपनी नस्लों को नसीब और मुकद्दर दे सकते हैं? बोले, किसी के बस में है ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़े दाना शख्स हैं, अक्लमंद शख्स हैं, ये हमारे बस में है ही नहीं। ये मदीने वाले के दर पे आना पड़ेगा, ये मदीने वाले के दर से रोशनी लेनी पड़ेगी, ये आका मदीने वाले के दर पे आके ही ये निजाम चलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं। एक तस्वीर सिर्फ ऐसी करें आप। हमारे जो सिलसिला कादरी हजवेरी है, इसमें एक तस्बीह होती है इस्तिग़फ़ार की सुबह शाम, ज्यादा उससे कर लें अच्छी बात है, और कम अज कम एक तस्बीह है। एक तस्बीह ऐसी हो जिसमें दिल साथ है, दिल साथ है। वरना यकीन जानिए जिंदगी में ठिकाना नहीं होगा, ठिकाने के बावजूद ठिकाना नहीं होगा, घर के बावजूद घर नहीं होगा, दर के बावजूद दर नहीं होगा, रोशनियों के बावजूद अंधेरे होंगे, जिंदगी में चैन और सुकून नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।